Good morning, friends. In the previous lecture, we have discussed adders and subtractor, and in this lecture, we will discuss comparator. Okay, so comparator is also combinational circuit through which we can compare the magnitude of two binary numbers. So, binary number may be 1 bit, 2 bit, 3 bit, or maybe 4 bit, or maybe 5 bits. Okay, so we will compare the two numbers with the help of a comparator. Okay, so how we'll do it, let's see. So first of all, we will discuss 1 bit comparator. 1 bit comparator. Okay, so in this comparator we will have three outputs. One bit of A, one bit of B, and the output we will have three. One is greater, equal, less. Greater means A is greater than B, equal means A is equal to B, less means A is less than B. And we will say greater, equal, less. Okay, so this is 1 bit comparator. Okay, 1 bit comparator. So we have two inputs. Now this is we have block diagram, and we will convert the behavior of this block diagram in the form of a table, truth table. So input and output. So input we have two inputs A and B. So output we have greater, equal, less. So if we have two inputs, with these two inputs we will have four combinations: 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay, so now we compare 0 or 0. A and B both are equal, so B high, equal, and 0 less and greater. So here 0 and B is 1, so A is less than 1, A is less than B, so A is less than B, less than वाले को करेंगे हम 1. Here A is 1, B is 0, so A is greater than. So in this way, in this case both are equal. So this is the truth table for this 1 bit comparator. So now you will have to find out the logical expression for all the input outputs. For the G, we will have only one location at which 1 is located, that is A B bar. Similarly, for E, we have two locations. The one is located for that. One is 1 A bar B bar, and second one is this A B. And for less, only one location A bar B. So these are the logical expression. So we have this is for A greater than B. This is for A equal to B. This is for A less than B. Okay, so now we have three logical expressions and we can implement this. So we have, this is what? This is XNOR. This is XNOR. Okay, E is XNOR A bar B bar plus A B. इसको मैं कह सकता हूं A XNOR B. Okay, so you can implement this is AND gate. Okay,
So आपके पास एक ए है, ए बार, बी, बी बार. Okay, so in this first greater a into b bar, so we will connect using so a into b bar, so this is a into this is b bar, so this is greater, that is a greater than b. Okay, second one is a XOR b, this is equal a XOR b, so this is a, this is b, a XOR b, it is nothing but it is a equal to b. And the last one we have a bar b, this is AND gate, and it will connected with a bar, this is a bar, and into b, this is b. In this way you can implement. Okay, so this is the implementation of 1-bit comparator. Similarly, you can design 2-bit comparator. You can design 2-bit comparator. You can design 2-bit comparator. Okay, so for 2-bit we will have overall we have two number a and b, so 2-bit for this a naught, a1, and for 2-bit this b naught and b1. So total overall we have 4-bit. Okay, from each a and b. So for this block diagram, the block diagram of this will be 2-bit comparator, this is greater, equal, and less. So here we will have 4 overall inputs, a1, a0, b1, b0. Total overall we have 4 inputs. According to 4 inputs we will have 16 combinations. So we will make it table. So inputs and outputs. Okay, so a1, a0, b1, b0. Output will be greater, equal, less. Okay, so we will have 16 combinations. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0, and last we will have 1 1 1. So in this way we have total 16 combinations.
Okay, we will have 16 combinations. We will compare the number this with this. Okay, so number A is 0 0, number B is 0 0, both are equal, so hide this and this in this way. This is less 0 0 and 0 1, this is less, so this is 1 0 0, and again this is less 0 0, so this and this. Again this is less 0 0 1, again this is greater, so 1 0 and 0, again 0 1 0 1 equal, again 0 1 and 1 0, this is less, again 0 1 and 1 1, again less, okay sorry, this is less, again this is less. Okay, here 1 0 and 0 0, this is greater, 1 0 1 0 2 and 0 1 1, so this is again greater, 1 0 1 0 equal, 1 0 and 1 1, 1 0 means 2, 1 1 means 3, so again it is less, 1 1 greater, 1 1 again greater, 1 1 and 1 0 again greater, and this is equal. So in this way, so we have this truth table. Okay, we will have this truth table. So इसको बनाने में कोई डाउट नहीं है. अब हमारे पास we have 3 outputs, so combinations are 16, so we will use K map. हर एक ग्रेटर के लिए, इक्वल के लिए, लेस देन के लिए, तीनों के लिए आउटपुट के लिए हम K map यूज करेंगे, क्योंकि हमें अब क्या करना है, लॉजिकल एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है. ओके, सो लॉजिकल एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है तो हमें K map यूज करना पड़ेगा. तो अब आप देखिए G को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ऐसे ही इक्वल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लेस को भी. तो जी को देखिए 4 8 9, ओके, 4 9 10, 4 9 10 14 15, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 10 11 12 13 14 12 13 एंड 14. इन लोकेशंस पर 1 दे रखा है, ठीक है, इन लोकेशन पर. नेक्स्ट है 0 5 10 15, 0 5 10 15, ठीक है, 0 5 10 15. और नेक्स्ट है 1 2 3 1 2 3 6 7 11, ठीक है, 6 7 1 2 3 6 7 11. ये हमारे फंक्शन हो गया, ठीक है, 3 वेरिएबल का फंक्शन हो गया, 4 वेरिएबल का फंक्शन हो गया. अब हमें से K मैप से सॉल्व करना है. तो पहले हम ग्रेटर के लिए बना लेते हैं K मैप. A1 A0 B1 B0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0. This is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो कहां कहां पर 1 दे रखा है, देखिए 4 8 9
4, 8, 9, 12, 13 एंड 14। सो इस तरीके से आपको दे रखा है। अब हम ग्रुपिंग करेंगे इसकी। तो एक ग्रुप ये बन जाएगा, एक ग्रुप ये बन जाएगा और एक ये, तो 3 ग्रुप बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इनका निकाल लेंगे हम। सेकंड वाला ये बन जाएगा हमारा किसके लिए, ग्रेटर के लिए। ओके, सेकंड बना रहा हूं मैं इक्वल के लिए। A1 A0 B1 B0। ठीक है, कहां कहां पर 0, 5, 10, 0, 5, 10, 15। ठीक है, ये इन लोकेशन पे आपका 1 दे रखा है। यहां से जो आएगा वो आपका इक्वल का आएगा। ठीक है, अब लेस के लिए भी बना लेते हैं। A1 A0 B1 B0, ये सब आपको आता है करना, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। पहले ही हम बता चुके हैं फर्स्ट यूनिट में के मैथ को। ठीक है, तो कहां का देगा 1 2 3 6, 1 1 2 3 6 7, 7 के बाद है आपका 11। ठीक है, इस तरीके से ये भी रखा है। तो इसमें ग्रुप बना लेंगे। ये एक 4 का ग्रुप बन जाएगा, ये एक 2 का ग्रुप बन जाएगा और एक आपका ये और ये बन जाएगा। इस तरीके से ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, अब इनकी लिख लेते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आते हैं। दिस इज लेस। ओके, सो यहां देखते हैं पहला वाला ग्रुप ये है। तो इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है, A1 A1। ठीक है, दिस एंड दिस। यहां क्या कॉमन है, दिस 0 0 B1 बार। ओके, इसमें देखिए आप क्या कॉमन है, A0 और यहां B1 बार B0 बार, B1 बार B0 बार। ठीक है, प्लस अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो A1 A0 और इसमें और इसमें क्या कॉमन है, B0 बार। ये इसका हो गया लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसका इंडिविजुअल बनाना पड़ेगा, ग्रुपिंग नहीं होगी इसके अंदर। तो ये आ जाएगा आपका A1 बार A0 बार B1 बार B0 बार प्लस A1 बार A0 B1 बार B0। ऐसे इसके लिए A1 A0 B1 B0। इसके लिए भी A1 A0 बार B1 B0 बार। इसके लिए भी आ गया लॉजिकल एक्सप्रेशन। ऐसे इसको निकाल लेंगे। इसका निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, 0। तो A1 बार, इसमें क्या कॉमन है, B1। ओके, प्लस अब इसका देखिए A0 बार B0 बार A1 बार A0 बार B1 बार B0। No, this is this and this is B0 bar। this is nothing B0। और इसमें देखिए यहां से क्या कॉमन है, A0 बार और यहां B1 B0।
ये आपके लॉजिकल एक्सप्रेशन आ गए, ठीक है, के मैप को यूज करके आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इंप्लीमेंट करना है। तो हमारे पास देखिए कैसे करते हैं इंप्लीमेंट। कितने वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, समझ लीजिएगा, यहाँ आएगा नहीं, स्पेस नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 4 वेरिएबल लूंगा। दिस इज A1, A0, दिस इज A0, A0 बार, B1, B0 बार, B1 बार, B0 एंड B0 बार। तो 8 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। और हमारे पास इसमें 3 नैंड गेट है, इसमें आपके 4 नैंड गेट है, इसमें आपके 3 नैंड गेट है। तो पहला वाला फंक्शन बनाना है मुझे 3 नैंड गेट, 3 नैंड गेट को बना के सम करना है, ठीक है। तो ये रहा 1 2 3, और इसको क्या करना है, सम करना है, ठीक है। इसके लिए 4 नैंड गेट है, 1 2 3 4, और इसको सबको क्या करना है, सम करना है। तो ये जो फंक्शन आएगा, ये आपका आएगा ग्रेटर, ये आएगा आपका इक्वल, और यहां पर फिर से 3 नैंड गेट है, 1 2 3, और इसको सम करना है, और ये क्या आएगा आपका लेस। अब आपको कनेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। तो A1 B1 बार, B1 बार, नेक्स्ट है आपका A0 B1 बार, B1 बार एंड B0 बार। इस तरीके से कनेक्ट करना है। नेक्स्ट है आपका A1 A0 A1 A0 A0 and B0 bar. So B0 bar here. ठीक है, ये आपका ग्रेटर दे देगा फंक्शन। ऐसे ही बाकी के ये जो फंक्शन है आप करस्पॉन्डिंग इसके अकॉर्डिंग इससे कनेक्ट कर देंगे, और ये आपका पूरा का पूरा जो इंप्लीमेंट होगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा आपका ये 2 बिट कंपैरेटर। ठीक है, जैसे मैं इसको तो स्किप कर रहा हूं, इसको मैं यहां कनेक्ट करके दिखा रहा हूं। ये क्या है, A1 बार, सो दिस इज A1 बार, B1, तो B1 कहां है, दिस इज B1। ओके, नेक्स्ट है A1 बार, तो A1 बार हमारा कौन सा आया, ये आया है, यहां से इसको कनेक्ट कर दो। A1 बार B1, तो B1 भी हमारा यही आया है, B1। ओके, सॉरी दिस इज नथिंग, सेकंड फंक्शन हमारा A1 बार, तो A1 बार तो हमारा ये आ गया। फिर A0 बार हियर, A0 बार B0, so B0 is here, B0 is this is B0। नेक्स्ट है A0 बार, so A0 बार आपका दिस इज A0 बार, B1 एंड B0। इस तरीके से ये आपका फंक्शन फॉर 2 बिट कंपैरेटर के लिए डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग ये जो इक्वल वाला है इसके अकॉर्डिंग कनेक्ट कर देंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमको कंपैरेटर डिजाइन करना है। ठीक है, तो 1 बिट कंपैरेटर आपने सीख लिया, 2 बिट कंपैरेटर सीख लिया, लेकिन 3 बिट और 4 बिट भी कंपैरेटर आपको डिजाइन करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में 3 बिट और 4 बिट आता है। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं 3 बिट और 4 बिट के लिए बात कर लूंगा आगे लेक्चर में। ठीक है, बाद में कर लेंगे इस यूनिट के एंड में, लेकिन आपको ये डिजाइन करना आ गया होगा क्योंकि किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कंपैरेटर को। ठीक है, तो
इस लेक्चर के अंदर मेरे का पर्पस था कंप्यूटर को सिखाना। आई होप आप लोग लर्न कर लिए होंगे कि किस तरीके से हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था कंप्यूटर। आज के इस वीडियो में इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लेक्सर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, तो उसको करेंगे, फिर डीमल्टीप्लेक्सर करेंगे, फिर एनकोडर, फिर डिकोडर। ठीक है, तो एनकोडर, डिकोडर, डीमल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर से क्वेश्चन आपको आता ही आता है, तो उसको अच्छे से ध्यान से सीखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही है। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।